Good morning, students. How are you? And today we will discuss a small topic which always comes in short notes or in concepts. Sometimes may be asked in various exams, competitive exam. This is very small things in a small topic, and we within very less amount of time we will discuss. This is very important with this because of in ray optics, in the optics. There is a property of light. What happens somewhere? If light incident on it, incidenting on it, and what happens when light is not able to transmit or other things is happening? क्या होता है जब लाइट यहाँ पड़ती है और ये ट्रांसमिट नहीं होता, absorb नहीं होता, तो what happens? Maximum times you know that it reflects. But what happens when light entered from in this medium and crosses that medium? After passing through some time, suppose there is a place and I have kept a place in the cave, and in this material light is not possible, and it back to light, what happens? तो होता क्या है कि जैसे ही लाइट चिल्ड्रन इसमें पड़ती है, ठीक है, तो यहाँ पड़ती है, तो जैसे ऑब्स्टेकल आता है, तो ऑब्स्टेकल अगर ऐसा लगा दे हम कि रे के सीधे 90 डिग्री ऑब्स्टेकल लगा दे, तो लाइट जिस रास्ते आई है उसी रास्ते दैट मे बी बैक, जिस रास्ते वो आई है उसी रास्ते जाएगा वो. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, एंड दिस प्रॉपर्टी है, इसको कह सकते हैं कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. ये उसी टाइप का है बेटा, उसी टाइप का है कि यू आर कमिंग टू स्कूल बाय बस, एंड यू आर कमिंग टू स्कूल बाय बस, you have reached the school, and when school overs, the buses stop you and keep that place from where you came. वहाँ ले जाता है जहाँ से आप आए थे, और उसी रास्ते वहीं स्टॉपेज रोकते हुए जाता है. अगर ऐसा होता है, और ये निश्चित रूप से होता है, तो ये प्रक्रिया, लाइट भी इस प्रक्रिया को फॉलो करता है. और दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, कि जिस रास्ते आया उसी रास्ते क्या होता चला जाता है. इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. सी इन द रे ऑप्टिक्स चिल्ड्रन, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. वर्ड आ गया है रिवर्स, नाम रिवर्स मीन्स चिल्ड्रन, अगर कहीं एक्शन होता है तो उसकी रिवर्स में रिएक्शन होती है. कहीं कुछ भी होता है, अगर सेम अमाउंट ऑफ चीजें उसको टक्कर दे दे तो उसको हम रिवर्स बोलते हैं. या कोई काम होता है, फिर भी जैसे मान लीजिए हमने कोई रबड़ का गेंद फेंका, वो टकराया, फिर रिवर्स हो. उसी तरह से सिमिलरली लाइट भी अगर कहीं इंसिडेंट होता है, इफ लाइट इंसिडेंट ऑन समवेयर, so it comes back again and it follow the same path from where it reached there. ये वही रास्ता अपनाता है जिस रास्ते वो गया रहता है, और उस रास्ते को ही लाइट की इस प्रॉपर्टी को बेटा हम बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. सी व्हाट हैपेंस, सपोज दैट दिस इज इंसिडेंट, this is incidental and not necessary to discuss so many things. This is normal, this is the refraction of light, and this is refractive angle. And the medium, suppose this medium is A, and suppose this medium is B. A rarer medium, denser या denser है क्या? दो प्रोसेस का नहीं होता. When light incident on A, तो this is the point of contact, this is point of contact. क्योंकि ये रेयर है, मान लेते हैं सपोज दैट दिस इज रेयर एंड दिस इज डेंसर. है क्या भाई? आपको बताया था व्हाट आई टॉट यू कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज व्हाट, मोर देन 1. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम इज लेस देन 1, एंड फॉर एयर एंड वैक्यूम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1. सो आई हैव टॉट यू दिस थिंग. प्लीज ओपन द कॉपी, open the articles and read it. And one more thing I taught you, what? Remind it, in the case of reflection nothing has been changed except
intensity. But in the case of refraction, speed and wavelength changes and frequency and phasing now changes. So remember it. What happens when light entered in this medium A to medium B, medium A to medium B में जाता है, ये making I incident angle is I, refractive angle is. अब क्या है कि here we apply the Snell's rule. Snell's rule क्या है देख लीजिए. जब हम Snell's rule अप्लाई करते हैं तो will say Snell's rule state a body from a medium A and entering a medium B, the medium of object is A and medium of the image you can say that is B. We will write here. Now try the Snell's rule. What is Snell's rule? A ratio angle of children incident divided of sine angle, ratio sine angle of incident upon sine angle of refracted angle are in a same ratio and they divided to each other, and that divided value is the totally dimensionless quantities. In other words, we can say that is a tensor quantity which is dimensionless quantity. Remember that mu is the dimensionless quantity. Remember it. If sometimes is asked that what is the dimension of refractive index. So refractive index is a children. Refractive index is a dimensionless quantity. So remember it and see. Now applying here sin I upon sin R. लिख दिया A से B from A to. अब मैंने बताया I told you कि जब लाइट एक मीडियम से बेटा लाइट enters from one medium to another medium, इस मीडियम से इस मीडियम में आ गया तो A to B हो. हमने ऑब्स्टेकल यहां पर एक ऑब्स्टेकल लगाया था, वी हैव केप्ट आर्टिकल. अब क्या हुआ यहां पे ये आगे नहीं बढ़ी और जब रे इस पर पड़ रही है बेटा वो 90 डिग्री पड़े तो अब क्या रे फिर से वापिस जाएगी. जब रे रिटर्न्स अगेन तब क्या होगा यहां से थोड़ा देखेंगे आप और बारीकी से थोड़ा समझिएगा इस चीज को कि क्या है ये. यहां पे हमने ऑब्स्टेकल लगा दिया लाइट का और जैसे ही लाइट का हमने ऑब्स्टेकल लगाया लाइट फिर से बैक होने लगी. देखना उसी रास्ते बैक हो गई. मतलब ये है कि अब हमारी जो सेकंड राउंड की है यानी फ्रॉम चिल्ड्रन B to A, from B to A medium number B to medium number A रिवर्स में जा रहा है. रिवर्स लाइट जा रही है ये तो ये हो जाएगा B mu A. नाउ अप्लाइंग हियर सेम स्नेल्स रूल ये कहता है अब जब ये इधर से जा रही है इधर से रे जा रही है ये नॉर्मल है तो निश्चित रूप से ये क्या होगी इंसिडेंट एंगल की तरफ बिहेव करेगा और ये जो है बेटा ना रिफ्लेक्टेड एंगल की तरफ बिहेव करेगा. रिमेंबर दैट इफ इंसिडेंट गोइंग फ्रॉम दिस वन टू हियर एंड अगेन बाय दिस. देखिए ये आई हैव यूज्ड दिस सिंबल आल्सो और देखिए तो इंसिडेंट एंगल विल बी for medium B and refracted angle for this ray is I. तो इंसिडेंट तो विल राइट हियर sin R upon sin I. घबराइएगा नहीं डोंट इसको बड़े ध्यान से देखिए. फिर से समझा रहा हूं. लाइट आई A से B तक आई तो A से B तक I डिवाइडेड बाय R. जब B से A तक गया तो
r sin r divided by I, बिकॉज ये इंसिडेंट एंगल की तरफ बिहेव करेगा, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, और जब इसमें से ये आए तो ये इंसिडेंट, तो इस डाउट में नहीं रहना है। अब देखिएगा वी हैव a mu b इक्वल टू sin I अपॉन sin b mu a इक्वल टू sin r अपॉन sin I, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करें। आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी विल राइट हियर a mu b into b mu a is equal to sin I upon sin r into sin r upon sin I, both will be देखिए कैंसिल हो जा रहा है, so we get a mu b into b mu a is equal to 1। दूसरे तरह से कह सकते हैं आप कि a mu b is equal to 1 upon b mu a, we got a new equation and that is the reversibility equation। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा द प्रोसेस ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो क्या है प्रोसेस ऑफ रिवर्सिबिलिटी? प्रोसेस ऑफ, हमने क्या किया, व्हाट आई हैव डन हियर, हमने क्या किया, फिर से समझा रहा हूं। इंसिडेंट ए के बी में आया, इंसिडेंट एंगल आई, रिफ्लेक्टेड एंगल या यूज स्नेल्स लॉ, a mu b sin I upon sin। फिर फॉर वी हैव यूज्ड ऑब्स्टेकल व्हिच इज 90 डिग्री टू रे, so for this incident ray r will be incident angle and I will be the refracted angle। अब I upon r बीच में लगा दिए हम, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग लिख देंगे, बाय मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशन। तो by multiplying beta both equation, what we will get, a mu b b mu a, and multiply it sin I upon sin r, both will be cancels out, we will get 1, and this is the best equation from which we will find the numerical, there are some numerical comes based on it, so remember ki a mu b is equal to 1 upon b mu a, remember it, don't forget it। And what happens here, see children, the things which is happening here, principle of reversibility, if you want to know, this is short note for the reversibility of light, because if you write only will not get full mark, 2 marks, this comes in 2 marks, for getting 2 marks you have to use your hands and brain to write a mu b sin I upon sin r, you have understood, I taught you, b mu a sin r upon sin I। अब कह रहे हैं कि क्या है, तो थोड़ा समझा रहा हूं वर्ड है, if the ray of light transferring at any number of reflection or refraction has its path is reversed at any stage। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं रिफ्लेक्शन हो रहा है या बेटा रिफ्लेक्शन हो रहा है, एनी स्टेज, कहीं भी किसी भी स्टेज में हम अगर इनको रोकते हैं, स्टॉपेज लगा देते हैं, तो क्या होता है, इट ट्रेवल बैक टू सोर्स अलोंग द सेम पाथ, ये उसी रास्ते फिर से सोर्स, जहां कोई यहाँ बल्ब है या मोमबत्ती है, तो सेम पाथ, उसी रास्ते हमने शुरू में बताया था, उसी रास्ते कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होगा, उसी रास्ते चला जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी शॉर्ट। आई थिंक रिवर्सिबिलिटी का मतलब लाइट आई और रिवर्स हो गई, जिस रास्ते आई उसी रास्ते ही जाना रिवर्सिबिलिटी कहलाता है। एंड सी अब इसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस क्या है, क्या मतलब इसका है, क्या कहना चाहता है ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, कहना क्या चाह रहा है, ये भी समझ लें आप, ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या कहना चाहता है, मैं क्या कहना चाहता हूँ। ईच थ्योरम्स एंड ईच कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स चिल्ड्रन वांट टू से समथिंग, कुछ कहना चाहता है। अब जब कहना चाहता है, वो कह रहा है कि क्या मैं, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, क्या कहने कह रहा है
कि भैया किसी स्टेज में हम अगर इसके ऑब्स्टिकल लगाएं तो लाइट विल फॉलो बैक टू सेम पाथ टू द सोर्स तक वापस। ये कहना चाह रहा है। दूसरी कहानी ये कहना चाह रहा है बेटा कि अगर हम यहां से टच करें, मान लीजिए हम सोर्स को तो इमेज कहां बनेगी, यहां पे बनेगी, ये वहां पे लगा तभी भी ये हो, मतलब इमेज एंड ऑब्जेक्ट बोथ कैन बी चिल्ड्रन इंटरचेंज, बदल दे। ये कहना चाह रहा है द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इमेज एंड ऑब्जेक्ट पोजीशन मस्ट बी इंटरचेंजेबल, यू हैव एन प्रैक्टिकल ऑफ इट। इसके अब का प्रैक्टिकल भी है कि यहाँ पे इमेज है, सी यहाँ पे इमेज है, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी कहीं इमेज होगी, ये मिरर है तो इसकी कहीं न कहीं इमेज होगी। तो इस चीज को याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस चीज को कि इमेज एंड ऑब्जेक्ट में भी, अब कहेंगे कि इमेज और ऑब्जेक्ट चेंज कर लेंगे, इमेज की जगह ऑब्जेक्ट रख दीजिए, ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या इमेज करिए। अगर दो चीजें ऐसे करते हैं हम तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्जुगेट पोजीशंस। तो यहां भी शायद लिखा भी हुआ है कि द इमेज और ऑब्जेक्ट कैन बी इंटरचेंज, बदल सकते हैं, वी कैन चेंज इट, मतलब ऑब्जेक्ट की जगह पे इमेज, इमेज की जगह पे ऑब्जेक्ट, and this is called the conjugate position. So I think we have understood the process of reversibility of light. Reversibility of light is there. If we drop light at somewhere, if light becomes back and it follow the same path to the source, and that process is known as reversibility of light, and this happen in refraction also and reflection also. ये दोनों में होता है, तो इस चीज को याद रखना, बट एब्जॉर्प्शन में नहीं होता। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना ऑफ लाइट, इट्स वेरी शॉर्ट एंड वेरी इजी, एंड वी गॉट a mu v equal to 1 mu a. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पर्पस. सो थैंक यू चिल्ड्रन, विल सी इन नेक्स्ट वीडियो. बाय.